क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। दिस इज क्वालिफाइंग राउंड। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम मेन सेट पे पहुंचेंगे, तो चैप्टर वाइज हम ये पढ़ेंगे। नाउ तो वुमेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो वुमेन ने सिग्निफिकेंट रोल किया, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन, ठीक है, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। द वुमेन्स वर deprived from voting right, that is the universal adult franchise in French society, and they have to stand in queue for long hours for collecting bread. Women were symbol for doing the household work, and they were not actively participated, that given participation in political power. So women fought for it, and they fought for their voting rights. Also they fought for, ठीक है, they spread the idea of liberal nationalism and were having various revolutionary organisms, ऐसा organization भी बनाया। So various, they participated in various debates, उन्होंने participated किया, and also they rallied, उन्होंने rally भी किया। A good example of French Revolution in which men and women participated, it is the French Revolution is good example in which both are participating. जैसे कि हमारे नेशनल मूवमेंट में क्या था कि हमारे यहाँ भी दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो फ्रांस भी वैसा एग्जाम्पल है। The concept of liberty was the allegory of France, that is known as Mary Annie. तो लिबर्टी है। In 19th century, women were not given any political rights. The liberal nationalism advocated for universal suffrage. तो इस चीज को लिखें कि वुमेन ने कैसे किया। So women played a key role in French national movement. बताइए, जो वहां पर एक कौन फ्रेंच राइटर थी जो फीमेल थी? हाँ, ओलंपिक डिगॉर्जस, ठीक है। ओलंपिक डिगॉर्जस was writer who wrote to spark energy in women of France. ठीक है, ये जो बात आ रही है 1779 की, इसको 18th सेंचुरी कहेंगे। इन 18th सेंचुरी द वुमेन कंडीशन वाज क्रिटिकल इन फ्रेंच सोसाइटी। तो इन 18th सेंचुरी condition of women was critical. They were not active citizens. क्या उन्हें कंसीडर किया जाता था? Considered as active citizens. These were not the member of any political party, parties. Even they were deprived from their voting rights. Even they were deprived from their voting rights. They had made organizations. बताओ, यहाँ भी जी आएगा? नहीं वहाँ ओलंपिक में स्टार्टिंग में बताओ, एक ही जगह शायद बाई एक बार अच्छा कर लीजिए।
इसको ठीक करना, ठीक है। दे हैड brought out rallies, ठीक है, participated in debates, put behind bars by French police, they had made several organization, उन्होंने and ultimately succeeded in getting ये voting rights and in getting voting rights। फिर बाद में क्या हुआ? So other national movements in Europe also were inspired by French Revolution, and women also participated in those. Gandhi ji was also inspired by French Revolution, and also in India females participated in national movement। भारत में भी इसी की वजह से हुआ। तो उसी के आसपास की चीजें जब हमारे यहाँ हुआ, now nationalism in India, ओके। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ अर्पिता बताओ फर्स्ट का आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और कोई नहीं बताएगा। दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड reserved seats in education institution and a separate electorate that would choose OBC members. In October, Gandhi ji went to London for round table conference. Which is correct? Neither one nor two. Neither one nor two। पाई का बताइए सेकंड का आंसर। ऑप्शन बी अवध किसान सभा वाज हेडेड बाई महात्मा गांधी। ये गलत है। अवध किसान सभा को किसने हेड किया था? बोलो। बाबा रामचंद। नाउ सृष्टि, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू थर्ड क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1, 2 and 3, ठीक है। सो दैट इज ये सही है। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो। ड्यू टू जलियांवाला बाग द क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड। तो आपको रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू नेशनलिज्म इन इंडिया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या हुआ था, वहां मार्शल लॉ लागू हो गया था एक दिन पहले। तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग रैली निकाल रहे थे तो गोलियां चला दी गई। तो वहां पर जो कौन था, जनरल डायर, तो वो किस मेयर हाउस के सामने से वो लोग गुजर रहे थे, तो वहां पर गोलियां चला दी गई, ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गोलियां चली तो तनाव हो गया, तब मार्शल लॉ लग गया। तो पहले ओपन फायर किया तब मार्शल लॉ लगा, इस चीज का पता नहीं था। तो वहां पर जब जलियांवाला बाग हो गया, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट, ये फिर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इसके बाद पीयूष आप मुझे बताइए फोर्थ का आंसर। इसको समसामयिक दृष्टि से अरेंज कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है टाइम लाइन के हिसाब से। दैट इज फोर्थ पहले हुआ, HSRA was
फाउंडेड, नहीं सुना तो सुनो, तुमको भी नहीं पता, ठीक है। नाउ फुल फॉर्म ऑफ HSRA, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक गठबंधन। सोशलिस्ट का मतलब सब एक जैसे हो जाए, इसको सोशलिस्ट। अब देखो इन्होंने बताया है ऑप्शन सी, तो सबसे पहले क्या हुआ? HSRA की स्थापना हुई, फिर उसके बाद थर्ड क्या? कांग्रेस एक्सेप्टेड पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की को एक्सेप्ट कर लिया, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर थर्ड रीलॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम मना कर देंगे, अगर हमसे कोई काम करने को कहा जाएगा या कानून मानने को तो हम उसमें क्या करेंगे? मना कर देंगे। और फिर चौथा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में। नाउ फिफ्थ, सौम्या, दिस मोस्ट फेमस पिक्चर इज टेकन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? Salt March. That is Salt March. Okay. Sakshi, sixth question. बोलिए। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सारे वो जो वहाँ के लोकगीत थे उनका संकलन किया। सेवेंथ बताइए बेटा, आप बताइए पीयूष, प्रियांशु। हाँ, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम ऑप्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी का क्या आंसर हो सकता है? सी, इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। फॉर्मेशन appropriate formation of Swaraj party, अपना राज चाहते थे। It wanted members of to ask dominion state, तो dominion state का मतलब है कि dominion का मतलब देखो पहले, meaning of dominion, that is डोमिनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है पावर टू रूल। तो डोमिनियन का मतलब क्या है? यानी हम कॉलोनियल से डोमिनियन की ओर बढ़ना चाहते थे, हमें शक्ति दी जाए। तो डोमिनियन ऑफ स्टेट इट मींस पावर टू रूल स्टेट। लेकिन उसी समय वहां पर इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें उनसे कहा गया कि काउंसिल इलेक्शंस, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है राज्यसभा, तो उनसे कहा गया कि आप काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लो, तो थोड़ी पावर तो मिल जाएगी ना। तो इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज। तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन क्यों हुआ? इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो काउंसिल इलेक्शन का कांग्रेस ने कभी बहिष्कार नहीं किया। जो भी इलेक्शंस हुए उससे उनको क्या हुआ? एक पार्शियल पावर मिली। फुल स्वराज की तो बाद में गांधी जी ने कही थी, और फिर उसके बाद भी कह दिया था भारत छोड़ो। तो उसके बाद था कि क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया कि हम आपका सहयोग भी नहीं करेंगे और आप भारत से चले जाइए। तो ये है, इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू अपोज साइमन कमीशन। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, साइमन कमीशन का भी अपोज, यही चीज है। एट देखो सुप्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस एक्सेप्टेड द काउंसिल इलेक्शन। तो कौन सी प्रोविंस ने बहिष्कार किया, उसने हिस्सा नहीं लिया? मद्रास ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, एक्सेप्टेड, मद्रास ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और बाकी लोगों ने नहीं किया।
डिफरेंस बिटवीन बाइकॉट एंड पिकेटिंग। जैसे हम ये जानते हैं कि पिकेट करना, तो शराब की दुकानों को, लिकर जो शॉप्स है उनको पिकेट किया गया, चारों तरफ से उसमें कुछ बैरिकेड्स लगा देना, इसको कहते हैं पिकेटिंग, सो दैट नोबडी कैन एक्सेस द लिकर शॉप्स। क्योंकि ये भी बात है, शुरू में तुमने जेम्स मिल का पढ़ा है, तो वो लोग बोलते थे कि यहाँ के लोग जो है लिकर एडिक्ट हैं, ये सब हैं, तो भारत की सोसाइटी को इससे हटना होगा। तो ये बात सही थी कि हम नेशनल मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे अगर हम लिकर में ही लगे रहेंगे, तो इसलिए इसकी पिकेटिंग की गई। और बाइकॉट किसका किया गया? जैसे विदेशी कपड़ों का, सो जो भी बाहर के कपड़े हैं, फॉरेन क्लॉथ, इन सबको हम दे वर नॉट टू बी यूज्ड एंड खादी टू बी यूज्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस लिखो। दैट इज बाइकॉट इज ए टर्म इन विच पीपल रिफ्यूज टू डील विद। आपको मालूम है संसद का भी बाइकआउट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द फंक्शंस और एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन, इसको कहते हैं बाइकआउट करना। सो बाइकआउट इज ए टर्म फॉर प्रोटेस्ट इन विच पीपल रिफ्यूज टू डील another or associate with another class of people. ठीक है। On other hand, picket. For example, Indians boycotted the foreign clothes. And started wearing khadi. जबकि picket is the blocking of entrance of a shop to prevent any work to be done there. अगर आप किसी चीज की पिकेटिंग कर देंगे, फैक्ट्री के भी गेट पे पिकेटिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा? एंट्रेंस ब्लॉक हो जाएगा और वहां कोई काम नहीं होगा। इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। सो ब्लॉकिंग द एंट्रेंस ऑफ सम शॉप और फैक्ट्री is called picketing. This is also a kind of protest. It is also a kind of protest. So during national movement, liquor shops were picketed. Liquor shops. OR. Differentiate between forced recruitment and बेगार। तो प्रियांशु इससे क्या समझते हो? एक है फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट कब हुआ था ये मुझे बताओ, और किस लिए किया गया था? फोर्स रिक्रूटमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था। हाँ। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको सोल्जर्स की कमी हो गई थी, तो बिल्कुल बिल्कुल। और बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब टेकिंग वर्क विदाउट पे, अनपेड लेबर। काम लो,
और उनको पैसा नहीं, तो जबकि फोर्स रिक्रूटमेंट में पैसा दिया जाता है। सी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट आर्मी और इन सब में होता है, इज द प्रोसेस यूज्ड बाय British Army join army, ठीक है। They were paid, वो पेड होते थे और क्या होते थे, कम्बाटेंट मेंबर, वो लड़ाकू लोग रहते थे, लड़ाई भी करते थे, तो दे वर पेड। व्हाइल these were used, these soldiers were used during First World War। बेगार क्या होगा, बेगार was the labor that villagers were forced to perform without any payment, so villagers were forced to perform job without paying them। Is called begar। It is a kind of slavery, उनसे काम लिया जाए और उनको नहीं किया जाए। Now next is who led महात्मा गांधी मूवमेंट in आंध्र प्रदेश during 1920? बताइए अर्पिता। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। यस, उनके पास बहुत एक्सट्रीम पावर्स थे, उनके हिसाब से वो किसी को भी हील कर सकते थे अगर वो उसे गोली लग जाए तो भी है। हाँ, ये बात सही थी, द डिवाइन पावर थी, और वो ये भी कहते थे कि आई हैव गॉट सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, ऐसा बुक में लिखा है, अल्लूरी सीताराम राजू। इन विच मूवमेंट डिड द वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर फर्स्ट टाइम? Now, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, अल्लूरी लेट द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। ये लोग क्या करते थे, इनको कहा गया था कि इनके खिलाफ वारंट हो गया था कि इन्हें जेल में डालना है, तो ये भाग गए थे और वहां से छिप के आते थे और छापा मार युद्ध नीति थी कि मार के फिर भाग जाते थे जंगल में, तो इसको कहते हैं गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट क्या है कि मारा और फिर वापस भाग गए, तो कोई पकड़ ही नहीं पाता था। सो लेट मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, ठीक है। In Andhra Pradesh during 1920, civil disobedient movement in women participated, किसमें किया? In civil disobedient movement, women participated in large number। अब आंसर शीट अंदर रख लो, ओके, और अंदर रख ली आंसर शीट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट,
एंड इन दोनों के एमसीक्यू, एक तरफ एक के 8 एमसीक्यू, एक तरफ दूसरे के। चलो क्या कर